ان روشنیوں میں جھاگ اڑاتی اور پھر دم توڑتی ہوئی سمندری لہریں سفید و سیاہ رنگوں میں ہولناک شبیہیں بنا رہی تھی۔ اس سمت میں پنڈال کے باہر تک قالین بچھے ہوئے تھے۔ اندر کا فرش بھی ان قالینوں سے مرصع تھا۔ پنڈال میں کوئی اسٹیج نہیں تھا۔ کناتوں کے ساتھ نیم دائرے کی صورت میں سجی سجائی میزیں اور آرام دہ کرسیاں بہت قرینے سے سجی ہوئی تھی۔ درمیانی جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس خالی جگہ کی 3 سمتوں میں میزیں اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ چوتھی سمت میں نہ جانے کیا کچھ جوڑ کر ایک بار کھڑا کر دیا گیا تھا، جہاں مختصر لباسوں والی کئی لڑکیاں گلاس اور پیمانوں کو رگڑ رگڑ کر چمکانے میں مصروف تھیں۔ چوفان ہمیں فخریہ انداز میں وہ سب کچھ دکھاتا اور بتاتا ہوا پنڈال میں لے گیا جہاں جوان خوب روح اور بے باک تھائی لڑکیوں کا ایک پورا غول بے مقصد کاموں میں مصروف تھا۔ سب میزیں خالی تھیں۔ ہم وہاں پہنچنے والے پہلے مہمان تھے۔ ڈان کو روایتی طور پر اس نیم دائرے کی وسطی میز پر بیٹھنا تھا۔ چوفان نے ہمیں اس کی قریبی میز پر بٹھانا چاہا، لیکن میں نے دور کی ایک میز منتخب کر لی۔ ڈان کی نظروں سے دور رہ کر میں آسانی سے فرار کی راہ اختیار کر سکتا تھا۔ تمہارا بندوبست بے مثال ہے، میں نے اس کا دل بڑھانے کے لیے کہا۔ کوئی من چلا پاکستانی یہ منظر دیکھ لے تو کراچی کا ساحل روز اسی طرح آباد ہونے لگے۔ سمندر کو آلودگی سے بچانے کے لیے یہاں ایسی پارٹیوں پر پابندی ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ یہ ڈان کا معاملہ ہے، اس لیے چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ میں نے دل کھول کر ساری حسرتیں نکال لی ہیں۔ خرچ بھی تم کو اٹھانا پڑے گا، میں نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ اس کی پرواہ نہیں، وہ بائیں آنکھ دبا کر مکاری سے بولا۔ ماسٹر یہ سرمایہ کاری ہے، چند دنوں میں 1 کے 100 بلکہ 1000 یا لاکھ تک لوٹ آئیں گے۔ چھوٹا راجن اپنے باپ کا خزانہ ساتھ نہیں لے کر آیا تھا، وہ یہیں سے کما کر کروڑ پتی بنا تھا۔ بات ختم کرتے وہ چونک کر پلٹا۔ بار پر کوئی اسے بلا رہا تھا۔ وہ وہاں سے مزید کچھ کہے بغیر ادھر ہو لیا۔ اس کے جاتے ہی ایک طرح لڑکی ہماری میز پر آ گئی۔ لباس کی مفلسی اس کے پورے وجود سے حیا تھی۔ اس نے جھک کر بڑی ادا سے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ میں نے فریش لائم کی فرمائش کی تو اس نے حیرت سے یوں میری طرف دیکھا جیسے میں نے کوئی ناشائستہ بات کہہ دی ہو۔ وہ گئی اور چند لمحوں میں میرے مطلوبہ مشروب کے 2 ٹھنڈے گلاس میز پر لے آئی۔ یہ تقریب سمندر کی کھلی فضا میں نہ ہوتی تو میرے لیے یہاں بیٹھنا دشوار ہو جاتا۔ غزالہ نے اپنے گلاس سے پہلا گھونٹ لے کر کہا، لڑکیاں ابھی سے بے لگام ہو رہی ہیں۔ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ آپ کے سوا یہاں کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں آئے گا۔ یہ تھائی و رفا کی معاشرت کا ایک رخ ہے۔ ان کا میزبان ایک ڈان ہے۔ وہ سب یہاں آ کر فخر محسوس کریں گے۔ عورت اور شراب کی کشش بے پناہ ہوتی ہے۔ اس گر کو آزما کر اس قوم نے سیاحوں سے اربوں ڈالر بٹورے ہیں۔ ان کی اشرافیہ بھی اس لت میں مبتلا ہے۔ تقریب گاہ کا بندوبست اس ڈھب سے کیا گیا تھا کہ پروگرام واضح تھا۔ بار اور میزوں کے درمیان چھوڑی ہوئی خالی جگہ یقینی طور پر رقاص جوڑوں کے لیے چھوڑی گئی تھی۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے فریش لائم کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے رہے۔ میں نے وقت گزارنے کے لیے سگریٹ سلگا لی۔ اس اسنا میں ایک شوخ اور چنچل لڑکی مسکراتی ہوئی ہماری طرف آئی۔ اس نے توتلی انگریزی میں اپنا تعارف کراتے ہوئے انکشاف کیا کہ ہماری دیکھ بھال اس کے سپرد کی گئی تھی۔ مجھ سے اجازت لے کر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کی شرارت سے چمکتی روشن آنکھیں بار بار میرے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کے براجمان ہوتے ہی 81 لڑکیوں کا مصرف میری سمجھ میں آ گیا۔ ہر میز کے لیے ان میں سے ایک لڑکی مخصوص تھی، جو رہ جاتی وہ اوپر کی بھاگ دوڑ میں لگی رہتی۔ آنے والے بازوق مہمان بعد میں ان کا بھی کوئی نہ کوئی مصرف تلاش کر لیتے۔ ہمارے لیے فریش لائم لانے والی لڑکی انگریزی سے نابلد نظر آتی تھی۔ یہ چوفان کی مہربانی تھی کہ اسے انگریزی جاننے والی مختصر پوچھ سے بدل دیا گیا تھا۔ لڑکی باتیں کرنے کا فن جانتی تھی۔ وہ اپنی ادا دکھا کر بے تکلفی سے باتیں کرتی رہی۔ غزالہ نے اسے جب یہ کہا کہ اس لمبی تقریب میں صرف واش رومز کی کمی تھی تو لڑکی نے ہنستے ہوئے بتایا کہ مہنوش مہمانوں کی اس ضرورت کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ سڑک پر جنریٹر کے پہلے 4 کارواں کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ہر کارواں میں جملہ سہولیات سے آراستہ 3 واش روم بنے ہوئے تھے۔ میں نے چوفان کے ساتھ ادھر ادھر آتے ہوئے کارواں دیکھے تھے۔ لڑکی نے ان کا مصرف بھی واضح کر دیا۔ پنڈال میں لگے ہوئے طاقتور اسپیکر پر اچانک دھیمی مغربی موسیقی گونجنی شروع ہو گئی۔ موسیقی کی لے پر لڑکی کے ہاتھ پیر تھرکنے لگے۔ میز کے نیچے یکایک اس لڑکے کے گھٹنے میرے گھٹنوں سے ٹکرائے۔ میں نے سٹ پٹا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ پرشوق انداز میں میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ میرے اضطراری رد عمل سے غزالہ کی چھٹی حس جاگ اٹھی۔ اس لمحے بھر کے لیے اشتباہ میز نظروں سے لڑکی کو گھورا، پھر اس کے شانے پر ہلکی سی تھپکی دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تم بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی ہو، غزالہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اپنی ضروریات کے معاملے میں ہم دونوں خود کفیل ہیں۔ ہمارے درمیان کسی اور کی شمولیت کا امکان نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم خالی بیٹھنے کے بجائے گھومتی پھرتی رہو تاکہ ہم تخلیہ میں یہاں کے رومان انگیز ماحول سے کچھ فیض حاصل کر سکیں۔
जब भी जरूरत हुई हम तुम्हें बुला लेंगे। मैं भी यही सोच रही थी, लड़की ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और कुर्सी छोड़ दी। ये याद रखना कि अब मैं तुम्हारी मेजबान हूँ। वो होशरुबा अंदाज में लचकती और मटकती हुई बार की तरफ चल दी। तुमने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, मैंने गजाला से कहा। वो आजाब की तरह हमारे सरों पर मुसल्लत हो गई थी, अब इसको भी जहन में रखना पड़ेगा। वो हंसते हुए बोली। मैंने इसकी चोरी पकड़ ली थी, इसलिए वो झट से चल दी। मैंने आप दोनों के दरमियान अपने पैर फैला लिए हुए थे। बीवी हर हाल में बीवी होती है, चोर के मामले में इसका रेडार बहुत मुस्तअद्दी से काम करता है। मैंने सर हिलाते हुए कहा। मैं सोच रहा हूं कि वो इसी तरह हमारे सरों पर मुसल्लत रही तो 1 बजे क्या होगा। मुझे ये मेजबानी से ज्यादा निगरानी नजर आ रही है। वो शौकीन और खलंडरी लड़की है, उसे उकसाकर इतनी पिला दें कि वो मदहोश हो जाए। इस सूरत में हम खामोशी से निकल सकेंगे। उसने मेरे जहन में कलबलाने वाली तजवीज़ को बिला तवक्कुफ अल्फाज का जामा पहना दिया। मुझे इस मसले का पहले से अंदाजा होता तो मैं इसकी चोरी पकड़ने के बजाय इसकी हरकतों का नजरअंदाज कर देती। अब आपको इसे बहलाना होगा। वहां खुला बार लगा हुआ था, कई लड़के लड़कियां उसके आसपास मंडला रहे थे, लेकिन मैंने इनमें से किसी को कुछ पीते हुए नहीं देखा था। शायद इन्हें सिर्फ अपने मेहमानों के साथ पीने की इजाजत दी गई थी। वो एहतियात न की गई होती तो मदोइन की आमद से पहले चौफान का सारा अमला कैफो सरूर की अजनबी दुनियाओं की सैर कर रहा होता, पर कोई देखभाल करने वाला न होता। 8 बजे मेहमानों की आमद शुरू हो गई। सबसे पहले 2 सफेद फाम मर्द आए जो अपने अतवार से अमरीकी मालूम हो रहे थे। चौफान बाहर से उन्हें अपने साथ पंडाल में लाया। वो इन दोनों के सामने जिस अंदाज से बेचा जा रहा था, इससे मुझे गुमान हुआ कि इनमें से एक कर्नल गैरी होगा। मेरे शुबे को इस बात से भी तकवीयत मिली कि चौफान ने उन्हें मरकजी मेज के करीब बिठाया था। इन दोनों के बैठने से पहले 2 लड़कियां लपक कर इस मेज पर गईं। चौफान ने इनकी तरफ इशारे करके कुछ कलमात अदा की और अमरीकियों ने बड़ी ढिठाई से इन लड़कियों की कमर में हाथ डालकर इन्हें अपने साथ बिठा लिया। चौफान दोबारा बाहर चला गया। उसने हमारी तरफ जरा भी तवज्जो नहीं थी। मैं कनखियों से अमरीकियों के मेज का जायजा लेता रहा। लड़कियों के इशारे पर एक तीसरी लड़की ने बाहर से मैनोशी के लवाजम एक ट्रे में समेट कर इनकी मेज पर सजा दिए थे। जरा सी देर में वो चारों अपने पैमाने एक दूसरे से टकरा कर मैनोशी का आगाज कर चुके थे। अगली खेप में कई मेहमान एक साथ पंडाल में आए। इस बार चौफान इनके साथ नहीं था। लम्हा भर के बाद इसका सबब भी सामने आ गया। मेहमान तेजी से आ रहे थे। इनके इस्तकबाल के चौफान बाहर रुका हुआ था। मेहमानों को इनकी निशिस्तों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लड़कियों ने संभाल ली। इस वक्त तक गजाला की पेश गोई दुरुस्त साबित हो रही थी। आने वालों में किसी खातून का वजूद नहीं था। हमारी मेजबान इधर से उधर से भटकती हुई हमारे करीब आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने इल्तिजाई अंदाज में कहा, इजाजत हो तो मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं। मैंने फौरन उसे इजाजत दी थी। हम मेहमानों के नामों और मरातब से बेखबर थे। वो दूर से हमें इनके बारे में बहुत कुछ बता सकती थी। इसने कुर्सी पर बैठती आजूदगी से बताया कि रफ्ता रफ्ता सब लड़कियां आने वालों के साथ मसरूफ होती जा रही थी। इसे हमारे रवैये की वजह से अपनी हम जोलियों में सुबकी का सामना करना पड़ रहा था। चौफान ने उसे हमारी खिदमत पर मामूर किया था, इसलिए वो किसी और मेहमान की तरफ मुतवज्जा नहीं हो सकती थी। कटी हुई पतंग की तरह पंडाल में भटकते हुए उसे दूसरी लड़कियों के तंज और आवाजों का सामना करना पड़ रहा था। मैंने उसे अपनी मेज पर शराब नोशी की इजाजत दी तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। उसने करीब से गुजरती हुई एक लड़की की ट्रे से स्काच का लार्ज बैग उठा लिया। यहाँ बैठकर जो चाहो करती रहो, लेकिन मेज पोश की आड़ में अपनी टांगों पर जरा काबू रखना। गजाला ने वजाहत की। गड़बड़ की तो मैं दोबारा उठा दूंगी। वो गजाला की बराह रास्त इल्जाम तराशी का कोई जवाब न दे सकी। बौखलाहट में उसने तेज स्काच का एक बड़ा घूंट अपने हल्क से उतार लिया। हमें यहाँ आने वालों के बारे में बताती रहो, हम तुम्हारे शहर में नए वारिद हुए हैं। मैंने उस लड़की को खिफत से बचाते हुए अपना मुद्दा भी बयान कर दिया। इस वक्त तक 10-12 अफराद वहां आ चुके थे। इनमें से बेशतर एक दूसरे से यूं खुले मिले हुए थे जैसे इनमें पुरानी शनासाई रही हो। गोमी नामी वो लड़की इन सब लोगों से वाकिफ नहीं थी जिन्हें जानती थी। इनके बारे में धीरे धीरे हमें बताना शुरू कर दिया। सफेद बामों के बारे में उसने मेरे अंदाजे की तायद कर दी। पुख्ता उम्र वाला अमरीकी कर्नल गैरी था। इसका नौजवान साथी कैप्टन कुक था। वो दोनों शहर की रंगीन मिजाज खवातीन में बेहद मकबूल थे। औरत और शराब की किसी भी ज़ियाफत से इनकार इनके मसलक में शामिल नहीं था। मकामियों में सभी मारूफ चेहरे थे। तजारत, सनत, बैंकारी, वजारत और दीगर सरकारी शोबों के कलीदी ओहदेदार और शहरी वहां चले आ रहे थे। इनमें बैंकॉक का पुलिस कमिश्नर भी शामिल था जो पहले राजन का नमकख्वार हुआ करता था। कुछ लोग डान के लिए फूल और तोहफे लेकर आए थे जो मरकजी मेज के करीब करीने से कालीन पर सजा दिए गए। 8:45 बजे आने वालों में थाईलैंड के 2 अमीर तरीन अफराद नुमाया थे। इनकी आमद पर मौसीकी रोक कर थाई जुबान में कुछ ऐलान किया गया था। ऐलान खत्म होती तालियों की जबरदस्त गूंज में मौसीकी का सिलसिला दोबारा चल पड़ा। गोमी ने बताया कि इनमें से एक ने डान के लिए मर्सिडीज 600 की चाबी पेश की थी।
दूसरे ने डान के रफाही कामों के लिए 10 लाख बात का चेक दिया था। इन गैर मामूली नजरानों का जिक्र सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। दुनिया जानती थी कि डान का रफाही कामों से दूर का भी सरोकार नहीं था। वो सिर्फ अपने हाशिया बरदारों के फलाह बहबूद का ख्याल रखता था और वो सब शहर के छटे हुए बदमाश थे। वो इन दोनों की तरफ से अपने कारोबार और जानो माल के तहफ्फुज के लिए पेशगी अदा किया जाने वाला तावान था, जिसे तोहफे का नाम दे दिया गया। इन दोनों ने होशमंदी से काम लेते हुए पूरे इज्तिमा के सामने तहाइफ पेश करके सबको बता दिया था कि वो डान को इसका हिस्सा दे रहे हैं। इसके बाद डान या इसके आदमियों को इनके साथ कोई ज्यादती करने का हक नहीं था। मैं पढ़ता और फिल्मों में देखता रहा था कि डान गले तक जुर्म और गुनाह की दलदल में गर्क होने के बावजूद किस तरह सोसाइटी में मासूम और मुअज़्ज़ज़ बनकर जिंदगी गुजारते हैं। इनके सितम का शिकार होने वाले किस तरह इन्हीं के पास अपनी फरियाद लेकर आते हैं। इस इज्तिमा में मैं वो सब अपनी आंखों से देख रहा था। मुझे बेख्तियार चौफान के अल्फाज याद आ गए। उसने डान की दावत ऐशो तर्ब को सरमायाकारी का नाम देकर यह तवक्का जाहिर की थी कि एक के 100 बल्कि 1000 या लाख तक मिल सकते हैं। इसकी तवक्का पूरी हो रही थी। इसे कुछ देना या ना देना डान की सवाबदीद पर मुनहसर था। पंडाल की तकरीबन सारी मेजें आबाद हो चुकी थी। हर तरफ रंगो बू का एक सैलाब आया हुआ था। जिंदगी की रौनकें और राधाइयां अपने जोबन पर आती जा रही थी। जामो सबू लिए हुए लड़कियां फिरकियों की तरह पूरे पंडाल में चकराती फिर रही थी। मुतरन्नम और रसीले कह के मिली जुली आवाजें और कभी कभी कहीं से उभरने वाली तहय्युर ज़दा सुरीली चीख खलीज सयाम के साहिली कोशे को ख्वाबनाक आरजुओं के एक ज्वालामुखी में तब्दील करती जा रही थी। 9 बजे यकायक मौसीकी थमकी। साउंड सिस्टम पर डान की आमद का ऐलान हुआ और पंडाल में गहरी खामोशी तारी होगी। सबकी निगाहें साहिल की तरफ थीं, जिधर से घूमकर डान को पंडाल में आना था। डान के नमूदार होते ही सब लोग कुर्सियां छोड़कर खड़े हो गए। पंडाल तालियों के शोर से गूंजने लगा। डान नफीस तराज के स्याह सूट और बेदाग सफेद कमीज में बहुत वजी और बावकार नजर आ रहा था। इसके साथ वो चारों मोटे भी थे जो दिन रात से लज्बार की ऊपरी मंजिल पर मुफ्त की खाकर पल रहे थे। वो भी सूट पहने हुए थे, मगर इनके शानों से खुदकार राइफलें और इनके मैगजीन छूट रहे थे। वो चारों डान के दाएं बाएं थे। इसके पीछे चाफान किसी रोबोट की तरह अकड़ कर चल रहा था। पंडाल के सिरे पर रुककर डान ने मेहमानों की तरफ हाथ लहराकर सबको बैठने का इशारा किया। तालियों की गूंज धीमी होते होते माधूम हो गई। चंद लम्हों में सब मेहमान अपनी जगहों पर बैठ चुके थे, मगर इनकी निगाहें डान की मशहूर कुन शख्सियत पर मरकूज थी। डान ने हाथ हिलाकर अपने आदमियों से कुछ कहा। पांचों वहां से वापस हो लिए। डान बाएं तरफ पहली मेज पर बैठे हुए मेहमानों की तरफ बढ़ गया। डान की वो हरकत सबके लिए गैर मुतवक्का थी। इस मेज के गिर्द बैठे हुए 6 नफूस घबरा कर उठे। वो 3 मर्द और 3 मेजबान लड़कियां थीं। डान ने वहां रुककर सबसे बारी बारी हाथ मिलाया, कुछ बातें की और दूसरी मेज की तरफ लिया। ओह, डान यहाँ भी आएगा? मैं क्या करूं? गोमी बौखला कर बोली। सगुन से बैठी रहो, तुम्हें खा नहीं जाएगा, मैंने सर्द लहजे में कहा। उसे सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा और एक घूंट में अपना बकिया गिलास खाली कर डाला। हर मेज पर लोगों से फर्दन फर्दन मिलने के बाद वो हमारी मेज पर आया तो पुरतपाक अंदाज में मुझसे हाथ मिलाते हुए बोला, अली तो मुझसे इतनी दूर क्यों बैठी हो? डान, मेरी औरत सरा शर्मीली है। मैंने उसे खुश करने के लिए गजाला के लिए दानिस्ता औरत का लफ्ज इस्तेमाल किया। भीड़ भाड़ से घबराती है। तुम्हारी मेज के करीब बहुत से लोग होंगे। खूबसूरत औरतें शर्मीली होती हैं। डान ने मुरब्बियाना हंसी के साथ गजाला की तरफ हाथ बढ़ाया और बहुत नरमी से मुसाफा करके छोड़ दिया। अली, खुशनसीब है कि इसे तुम जैसी हसीन बीवी मिली है। डान के इन अल्फाज पर गजाला का चेहरा हया से तमतमा उठा। इसने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा किसी गैर मर्द की जुबान से अपनी इतनी बेबाकाना तारीफ सुनी थी। डान उसके रद्द-ए-अमल से बेपरवाह होकर कहता रहा, औरत अच्छी ना मिले तो मर्द की जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। तुम दोनों मेरे प्यारे हो, तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत ताबनाक होगा। डान के अल्फाज में तंज या तज़हीक का दूर दूर तक शायबा नहीं था। गजाला ने सर झुकाकर खामोशी से डान की बातें सुन ली, जुबान से कुछ नहीं बोली। मेरे करीब बैठते तो मैं तुम्हें बहुत काम के लोगों से मिलवा था। डान मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। ये मौका बार बार नहीं आएगा। मैं सबसे मिल लूँ तो मेरे पास आना। मैं तुम्हें कर्नल गैरी से मिलवाऊंगा। वो इतना बुरा नहीं है जितना तुम समझते हो। डान के मिजाज में अजीब शाहाना बेनियाजी थी। अपनी बात कहकर उसने मेरा जवाब सुनने की जरूरत नहीं समझी। गोमी से रस्मी अंदाज में हाथ मिलाकर अगली मेज की तरफ चला गया। जब तक डान अपने मेहमानों से इनकी मेजों पर मिलता रहा, सर्विस मुअत्तल रही। सारी लड़कियां सिमट कर बार के करीब जमा हो गई। जो ही डान अपनी वस्ती मेज पर पहुंचा, सागरो मीना एक मर्तबा फिर गर्दिश में आ गए। इस बार सर्विस बहुत तेज और मुस्तैद नजर आ रही थी। शायद लोगों की मैनोशी की रफ्तार में इजाफा हो गया था। वो बैंकॉक में हमारे कयाम के आखिरी चंद घंटे थे। इस वक्त डान से कोई बिगाड़ मोल लेना हमाकत के मुतरादिफ होता। मैंने गजाला और गोमी को हर हाल में इसी जगह बैठे रहने की हदायत की
और खुद डान की तरफ चल दिया। डान की मेज बड़ी थी, जिसके गिर्द कई खुशामदी जमा थे, जिनमें पुलिस कमिश्नर पेश था। गैरी डान के साथ बैठा हुआ था। मुझे देखते डान ने पुरतबाक अंदाज में गैरी से कहा, लो मैं अभी जिक्र कर रहा था, अली आ गया। बहुत शेर दिल सुरमा है ये मेरा। गैरी ने अपनी जगह से उठकर मुझसे हाथ मिलाया। एक लड़की ने इसी लम्हे मेरे लिए जगह खाली कर दी। डान के इशारे पर हम दोनों बैठ गए। अभी डान तुम्हारी दलेरी और तुम्हारी बीवी के हुस्न की तारीफ कर रहा था। गैरी हंसते हुए बोला, मैं अपनी बीवी को यूं मौजूद सुखन बनाना पसंद नहीं करता। मैंने गैरी की आंखों में आंखें डालकर कहा, जहां तक मेरी दलेरी का ताल्लुक है तो मैं सिर्फ डान के हुक्म पर अमल करता हूँ। डोरगे डान के हाथ में होती हैं। सही वक्त पर सही फैसले करना डान की खूबी है। डान ने पसंदीदगी के इजहार में अपना सर हिलाया और बोला, दिलेरी और वफादारी, ये दो खूबियां बहुत कम लोगों में यकजा हो पाती है। अली इनका मरक्का है। ये कहते हुए डान ने दूसरों को आंख का इशारा किया। उसी लम्हे मेज खाली होगी। वहां सिर्फ 3 नफूस रह गए, गैरी, डान और मैं। अली पाकिस्तानी है। इस बार डान ने जरा धीमे लहजे में अपनी बात जारी रखी। ये वापस जाना चाहता है, मगर मैंने इसे रोका हुआ है। तुम मुझसे क्या पूछना चाह रहे थे? पाकिस्तान के हवाले से आजकल हमारे जहनों में सिर्फ एक नाम आता है। क्या तुम डैनी को जानते हो? गैरी ने बराह रास्त मेरी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। सिर्फ नाम सुना है, मैंने अपने सर को नफी में जुम्बिश देते हुए कहा। राजन ज़हीन आदमी था। गैरी ने यकायक डान की तरफ मुतवज्जा होकर तायद तलब लहजा में कहा, उल्लू का पट्टा था। डान ने बुरा समूह बनाकर जवाब दिया, ज़हीन होता तो यूं कुत्ते की मौत न मारा जाता। गैरी ने गहरा सांस लिया और बोला, इसका इसरार था कि डैनी बैंकॉक में है और इसके पीछे लगा हुआ है। इसने भारतीय अंडरवर्ल्ड के 5 बड़ों को यहाँ बुलाया था। कल मंठार से मेरी बात हुई है। वो बता रहा था कि राजन ने अकबर नामी किसी गवाह को इन 5 के सामने पेश किया था। इसे बाज पुरुष की नौबत आने से पहले मोती महल पर बाहर से खौफनाक हमला हो गया और सबको भागना पड़ा। सब बकवास है। डान ने बेजारी से उसकी बात काट दी। पता नहीं तुम लोग गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। वो डैनी फोबिया में मुब्तला था। मैंने खुद छानबीन की है। कराची में 2 आदमी पकड़े गए हैं। इनमें से एक डैनी है। छोटा राजन को हर जगह वो नजर आ रहा था। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मोती महल पर वो हमला मेरे आदमियों ने किया था। मेरी जान में जान आई कि डान ने बरहम होकर मुझे एक कड़ी आजमाइश से बचा लिया। ये सब मुझे मालूम है, गैरी बोला। इन 5 बड़ों की ये राय है और मैं इससे मुत्तफिक हूं कि डैनी यहां नहीं आया। राजन के असाब पर इसकी दहशत सवार थी। फिर इस खबीज का जिक्र क्यों कर रहे हो? मैं अली को सूरत हाल समझा रहा था ताकि ये भी इस मुआम्मे को हल करने की कोशिश करे कि एक आदमी बैक वक्त 2 दूर दराज शहरों में कैसे हो सकता है। गैरी, यूं वक्त बर्बाद करना है तो ये मुआम्मा भी हल करो कि पानी में आग कैसे लग सकती है, भैंस अंडे कैसे देगी। नामुमकिनात के बारे में सोचना वक्त की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। डान का मूड बदस्तूर खराब था। इस लहजे में वो मुझसे मुखातिब होकर बोला, तुम अपनी मेज पर जाओ, जोड़े फ्लोर पर आ रहे हैं। लोग तुम्हारी बीवी के साथ भी रक्स करना चाहेंगे। तुम्हारी मौजूदगी में कोई इस मेज का रुख नहीं करेगा। वो डान की नहायत हमदर्दाना हदायत थी। मैं बल्टा तो मौसीकी की धुन पर मुतअद्दिद जोड़े पंडाल की खाली जगह पर थिरक रहे थे। हर मर्द ने अपनी शरीके रक्स को मजबूती से थामा हुआ था। मैं अपनी मेज की तरफ चला तो वहां एक अधेड़ उम्र शख्स खड़ा हुआ था। गजाला के चेहरे की तुरशी मुझे दूर ही से नजर आ गई। कनीमा ये हुआ कि मेरे पहुंचने से पहले वो शख्स साकी गरी करने वाली एक लड़की का हाथ थाम कर रकासों की भीड़ में शामिल हो गया।